Hello everyone and welcome to the first episode of Placement Talk presented to you by VP ITISM Student Chapter. In this series, we'll be inviting seniors who have been placed in different companies. We'll get to know their experiences and what was the learning curve that they followed during their recruitment process. First up, we have seniors placed in ONGC. Congratulations to all of them for getting an offer from such a reputed company. We are so excited to interact with them. I'm Yugam Tyagi and I'm your host for today. I'd also like to welcome my co-host Aisha. Hello Aisha and welcome to the show. Thank you, Yugam, for the wonderful start. I am Aisha, your co-host for today's session, and I really am honored to be here to gain some amazing experiences and lifelong learnings. So, today we have seniors who are all placed in ONGC as Assistant Executive Engineer. Firstly, I would like to congratulate all of them to have such a kickstart in the next phase of their life. ONGC, or Oil and Natural Gas Corporation, is one of the largest oil and gas exploration and production company in the country. It was established in 1956 and owned by Ministry of Petroleum and Natural Gas. It is among India's most valuable PSU and hence a dream company for many aspirants. So, without wasting much of our times, let's move on to introductions. Firstly, we have Akshat Singh sir from Drilling Profile. Then we have Ashish Shukla sir from Reservoir Profile. Then we have Himanshu Chaure sir from Production Profile. We also have Aritra Roy sir from Reservoir Profile. We have Vishal Pandey sir from Production Profile. I'd also like to welcome Shreyas Vats sir from Reservoir Profile. We have Sandeep Suryavanshi sir from Production Profile. We also have Ajin Gupta sir from Reservoir Profile. So without wasting any further time, I'd like to move on to the questions. So the first question is, why did you choose ONGC? Like any particular interests that led you to ONGC? I guess it was the first company that visited and we just tried our luck there. The situation was not that good, the placement scenario for this session. So as they say, beggars can't be choosers. We didn't actually choose, I personally didn't choose ONGC like exclusively. I just wanted to, try my luck everywhere at every company that visited. So yeah, that worked out well for me. हाँ, जैसे अरित्रो ने बोला कि चूज तो कोई ऐसे कर नहीं सकता, पर हाँ जैसे मेरी ड्रीम कंपनी ONGC थी क्योंकि थोड़ी सरकारी कंपनी है और थोड़ा टाइम मतलब आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अदर थिंग्स देन पेट्रोलियम, तो थोड़ा उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम मिल पाता जॉब के साथ। और ONGC थोड़ी सिक्योर जॉब है जो कि जनरली मतलब मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल थी, तो ONGC ड्रीम कंपनी थी और वो सबसे पहली कंपनी भी थी, तो इस कारण से ONGC। दोनों ही रीजन से, एक तो ये कि सबसे पहले कंपनी जो थी वो ONGC ही थी और दूसरा ये कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो सबको ही पहले तो मतलब सबका पता नहीं, लेकिन मेरा भी वही था कि चलो हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो पहले वही प्रेफरेंस वही रहेगा। तो ठीक है, सिमिलर सा एक्सपीरियंस सबका रहेगा, यही सेम आंसर, क्योंकि फर्स्ट कंपनी आती है वो पर। To add anything else, sir? हाँ। Okay, sir. Moving forward, that was really an amazing answer. We got to know the parameters to decide dream company and to explore our interest. So we do know that specific company looks for specific skill set when looking for employees. So my question is, what are the specific skills that are required to bag an offer with ONGC? Sir? For this answer, I would like to specifically invite Ashish and Vishal because they have performed exceptionally well in the interviews. So please, both of you. Yeah, so मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसे बता सकता हूँ, ONGC एक कोर कंपनी है, पेट्रोलियम की कोर कंपनी है। सो फ्रॉम लगातार हम लोगों का पास मैनी ईयर्स ONGC विजिट कर रही, जब से ISM डिपार्टमेंट बना तब से ONGC और ISM के अच्छे रिलेशंस हैं। तो हम लोगों के सीनियर्स ने जैसे हम लोगों को बताया, जो हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, ONGC आपका टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि आपकी अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप स्लम्बरजे जो सर्विस कंपनीज है, बेसिकली स्लम्बरजे, हेलीकॉप्टर या फिर जो भी आप जिसमें भी जाना चाहें, तो उसमें एक ये रहता है कि आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक आपको
एक एडिशनल क्वेश्चन देती है या फिर आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है बाकी लोगों से ऊपर. बट फॉर ओएनजीसी I can say that they strictly adhere to the core knowledge of and the technical part only. So इंटरव्यू जो हम लोगों का था मोस्ट ऑफ हम लोग जैसे 8 लोग हैं या फिर बाकी लोगों का भी, तो वो हम लोगों का टेक्निकल लाइक सीवी में जो भी टेक्निकल पॉइंट्स थे उन्हीं पे चला. मैं ऑलमोस्ट मेरा तो 100% और बाकी का भी जैसे मैंने जो रिव्यूज लिए तो 90% टाइम हम लोगों का केवल टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करी गई. तो यस, टेक्निकल नॉलेज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. आपको जो भी रिजर्वॉयर डीलिंग प्रोडक्शन जो भी आप 1 या फिर 2 या फिर 3 जिसमें भी आप जाना चाहें, जो भी आप एस्पायर करते हैं उसको स्ट्रांग रखिए. और बाकी आपका ये चीज़ है कि एक ओवरऑल आपको नॉलेज आनी चाहिए सब्जेक्ट की. इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको एटलीस्ट एक स्पेसिफिक आपको सब थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ पता होना चाहिए. जो आपने प्रोजेक्ट करा आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि हाँ मैंने ये करा. ऐसा नहीं कि आपने केवल रिपोर्ट रट के बैठ गए हैं वहाँ रिपोर्ट बताया जा रहा हो. वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो हाँ आपको लगेगा कि हाँ ये एक अलग डायमेंशन थी जो शायद मैंने सोची होती तो मैं बेटर आंसर दे पाता. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ताकि आप जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आप सारे डायमेंशंस को टेस्ट करें, अपना एक थोड़ा सा ब्रॉडली सोचें. सो ये जब आप थोड़ा सा कोर में इंटरेस्टेड होंगे, जब आपका कोर की नॉलेज आप सोचते हैं कोर में, जब आप अपना पेट्रोलियम के बारे में एक एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, तो यस इट हेल्प्स विद दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. विशाल. शुक्लर्स ने तो सारा बोल ही दिया, बट आई फील टेक्निकल नॉलेज 70-80% जैसे उसने का सही थी, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. जैसे मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू में फील किया कि मेरे में मतलब ऐसा मेरे को ऐसा फील हुआ कि टेक्निकल नॉलेज वर्क करी जो सीवी तक थी, जो तुम्हें इन डेप्थ तो नॉलेज कोई नहीं चेक करता, बट ओवरव्यू तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, क्या प्रोजेक्ट किया, ऐसे मतलब रट के नहीं आना चाहिए. बट जो मेन वर्क मेरे लिए किया, मेरे को ऐसा फील होता है कॉन्फिडेंस वर्क किया था मेरे उस समय. बट फिर यही बात है कि हर दिन मतलब इंटरव्यूज के टाइम तुम ऐसे जज नहीं कर सकते कि इट्स 50-50 साइड क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. बट कॉन्फिडेंट रहोगे तो ज्यादा बेटर रहता है. कोई भी कंपनी हो, चाहे ओएनजीसी हो, केन हो, श्लम हो, कोई भी हो, चाहे तुम्हारी कोर ना हो नॉन कोर हो, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा आई फील. टेक्निकल नॉलेज हर कोई पढ़ के आता है, मतलब ऑलमोस्ट जनता 70%, 80% टेक्निकल पढ़ के आएगी. बट उस दिन तुम कॉन्फिडेंस से कैसे बैठे हो, कैसे हैंडल कर पा रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है पैनल की तरफ, वो ज्यादा मैटर करता है फील. एनीवेज मेरा इंटरव्यू देखो ऐसा गया था कि टेक्निकल बेस्ड था 100%, एंड लकली फॉर मी मैंने पूरा आंसर कर लिया था. सो इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माय केस आई वुड से. And yes, confidence is a very important factor. You need to be confident even if you don't know the answer. Okay, you need to confidently tell them, okay sir, I don't know this, I just have this vague idea about all this, you know, in that sense. And yeah, that's pretty much it from my side. Okay, so that was very informative. बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि क्या स्किल सेट होना चाहिए. कॉन्फिडेंस काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Coming to the next question, like we all know that GPA is very important. So what was the overall impact of GPA and also internships? If a candidate has previous internships under his belt, does that strengthen the case during the placements? GPA की बात करें तो मतलब GPA के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो अपना मानता हूँ नो डाउट कि GPA का काफ़ी फ़र्क पड़ा है. दो मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, पर हाँ अच्छा गया था, पर GPA का काफ़ी फ़र्क पड़ता है. मतलब पहले अगर ये कोई बात कर रहे होते हम लोग ONGC के बारे में, तो मैं कहता कि GPA. पर इस बार जो हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं वो काफ़ी अनकन्वेंशनल हुए हैं. मतलब अगर मैं इंटरव्यू में जाऊँ तो मेरे सीनियर्स ने मुझे को कह रखा था कि हाँ तेरा GPA इतना है, तुझसे ऐसे सवाल करेंगे और तेरे को वैसा बोल के आना है नॉर्मल और हो जाएगा. पर जब मैं इंटरव्यू में गया तो बड़े ही अनकन्वेंशनल सवाल थे कि दुनिया में एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे है, या अभी डॉलर के प्राइस क्या चल रहे हैं, जो कि आज भी नहीं पता मेरे को. तो बहुत ही अनकन्वेंशनल सवाल थे. हाँ GPA से जज किया गया, पर हाँ इतना बड़ा फैक्टर इस बार GPA का रोल नहीं रहा. रही बात इंटर्नशिप्स की, तो जो जैसे कोई पहले कह भी चुका है कि अगर आपने कुछ भी किया हो पर उसमें अच्छे से किया हो तो वो चीज़ पूछते हैं. और थोड़ा इंटरव्यूज में, जैसे मेरी इंटर्न UTP में थी मलेशिया में, तो मैंने कुछ ऐसा 2-2.5 महीने का था. मतलब मैं तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल काम किया था, कुछ खास नहीं, बिल्कुल घुस के. पर उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा जो मतलब मेरे डोमेन के बाहर था. तो उस समय इंटरव्यू में मेरे को पता नहीं था, पर मैंने ऐसे मॉड्यूलेट कर दिया कि मैम जो आप कह रहे हैं वो मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, पर अभी पढ़ा नहीं है. तो थोड़ा वो आपसे आगे भी पूछ सकते हैं, बस आप उस चीज़ को अपनी इंटर्न को ही उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस बात से फ़र्क पड़ जाता है.
तो जीपीए और इंटर्न का, खासकर इस बार इंटर्न्स का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जीपीए का फ़र्क पड़ता था हमेशा से, पर इस बार शायद उतना नहीं हुआ है। और बस मेरी हेलो, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, अभी मेरा नेट इशू है थोड़ा। तो मेरा जीपीए थोड़ा सही था, मतलब 8.3 था लगभग। तो उस टाइम पे मुझसे भी यही सवाल, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछा गया ना, टेक्निकल ज़्यादा पूछा नहीं गया मुझसे, थोड़ा सा मुझे एडवांटेज मिला था जीपीए का। मुझसे भी ऐसी नॉर्मल सवाल पूछा गया था, 11th-12th का पूछा थे मुझसे। तो मैं ये बोलूँगा कि जीपीए का थोड़ा सा मैटर तो होता है ओएनजीसी में। अगर तुम थोड़ा जीपीए है तुम्हारा तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा तुम्हें। और मुझसे तो ऐसी नॉर्मल 11th-12th का ही पूछा गया था और टेक्निकल सवाल पूछे गए थे। और अगर जो सीवी में लिखे हो तुम, जो सीवी में तुम प्रोजेक्ट लिखो, अगर किसी सीनियर से तुम प्रोजेक्ट मांग भी रहे हो, अभी बहुत सारे लोग मांगेंगे भी सीनियर से प्रोजेक्ट कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो, ऐसे मैंने भी मांगा था, बहुत लोग मांगते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, अब प्रोजेक्ट डाल दिए सीवी में और उसके बारे में कुछ पता है नहीं और लिख के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जो पता है वहाँ पर वही पॉइंट लिख के जाओ। प्रोजेक्ट में अगर लिख रहे हो कि हाँ, तो एकदम वो डिस्क्रिप्टिव प्रोजेक्ट होता है, तो तुम बेसिक तुम अगर उसमें लिख रहे हो प्रोजेक्ट में तो वो लिख के जाओ। मैंने भी वही किया था, 2-3 लाइन प्रोजेक्ट का जो मुझे आता था वही चीज़ मैंने लिखा था। अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं लिख रहे हो तब भी सही है, प्रोजेक्ट लिखो ही मत उसमें। अगर तुमको नहीं आता तो मत लिख के जाओ प्रोजेक्ट, मैं तो यही बोलूँगा। तो मैंने लिख के गया था, मुझसे तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा नहीं, तो मेरा बस उसी में चला नॉर्मल इंटरव्यू। और मेरे जो सीवी में लिखा हुआ था फुटबॉल, तो वही फुटबॉल पे भी 2-3 सवाल पूछे थे ऐसे। मतलब मुझे एडवांटेज हुआ था थोड़ा जीपीए का, बाकी तो ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे फुटबॉल लगता है खासा पसंद है, हमारे में 3 लोग फुटबॉल वाले हैं। हाँ, एक और चीज़, जो ओएनजीसी का जो भी मतलब जैसे तुम ओएनजीसी वाला ट्रेनिंग होता है और यूटीपी वाला होता है और आईआरएस होता है, तो वो लोग ओएनजीसी ट्रेनिंग और आईआरएस को पता नहीं कुछ ज़्यादा ही प्रीफर करते हैं। तुम अगर आईआरएस वाला कुछ प्रोजेक्ट लिखो और यूटीपी वाला भी लिखो तो आईआरएस से मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप जाकर पूछेंगे। तो आईआरएस वाला तुम जितना भी लिखो ना, वो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो और उसका अच्छा खासा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो सही है, मतलब वो एक प्लस पॉइंट रहता है। और अगर मतलब जीपीए एकदम टॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओएनजीसी में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा जीपीए बेस्ड था। इस बार मतलब जिनका जीपीए थोड़ा कम है उनका भी हो गया। सिंपल है, जो जैसे सबने बोला प्रोजेक्ट वगैरह ट्रेनिंग जो भी है, मेन क्वेश्चन शायद वही से पूछेंगे। और तुम्हारा इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है, काफी अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सारे सही आंसर्स दे दिए, तो हो सकता है कि मतलब तुम उधर प्लेस हो भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जीपीए नहीं है तो तुम जा नहीं सकते, बट जीपीए रहना इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। That was really insightful. We get to know a lot of things, the importance of GPA, projects and internships, and how we should be strong in our topics, and we should try our best to back them. Moving on to next question. So we do know clubs play a very important role in our life, in our college life. इतने सारे memories बनते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं अपन सब मिलके, and the PORs gives us a sense of responsibility. So what is the overall impact of clubs, PORs and soft skills in the placement scenario? ज़्यादा प्रेफर करते हैं या बाकी मैं पीओआर का भी कवर कर लूंगा। बाकी पीओआर वगैरह से कुछ ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो। पूछा तो कुछ नहीं था इंटरव्यू, क्लब्स वगैरह इन सब से। दूसरे कंपनीज में पढ़ सकते हैं, केएन वगैरह। केएन अगर स्लम्बर्जी आती है, स्लम्बर्जी में तो वैसे और गाइस सीधी बात ये है कि अगर तुम किसी भी क्लब में हो तो ऑब्वियसली बात है तुम 2 चीजें हैंडल कर पा रहे हो साइमल्टेनियसली। तुम अपने एकेडमिक्स भी देख रहे हो और तुम क्लब भी देख रहे हो। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो तुम्हें बाकियों से अलग कर देती है। और पेट्रो में मतलब यूजुअली हमें सुनने में आता था सीनियर से कि स्पोर्ट्स का फैक्टर होता है थोड़ा, तो ये इसलिए पेट्रो में यूजुअली स्पोर्ट्स में हम 4-5 घुस गए थे और वहां से पेट्रो के स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स को मैनेज करना थोड़ा टफ था। तो चाहे कोई भी क्लब हो, जैसे चैनी का संघ, उनके आए दिन इतने इवेंट्स आते रहते हैं, इंड सेम के टाइम पे भी वो अपना काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो तुम जैसे मैनेज करोगे जिन 2 चीज़ों को, किसको ज़्यादा वेटेज देना है पर्टिकुलर टाइम पे, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, तो ये ज़्यादा किस हिसाब से तुम प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने टास्क को, वो तुम्हारी स्किल सेट ही दिखाता है। और सॉफ्ट स्किल मैटर करती है, 80-90% मैटर करती है, बट
हाँ एट द एंड ऑफ द डे कितने कॉन्फिडेंटली अपना जवाब दे रहे हो। जैसे मेरे को याद है मैंने अपने 2 जवाब गलत दिए थे, बट ऐसे कॉन्फिडेंस में दिए थे कि उन्हें नहीं पता चलेगा। अब उन्होंने उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया मेरे से। तो तुम ऐसे देख सकते हो कि सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वेगली कुछ भी बोल रहे हो, बस एक डिसेंसी एडिकेट रखना है और बस। हाँ यही है। मतलब जैसे विशाल ने बोला ना कि मतलब क्लब से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों से सवाल एक्सप्लिसिटली नहीं पूछे, पर इम्प्लिसिटली वो जो स्किल्स हुई उनके क्लब में रहने के बाद की वजह से, तो उसका फ़र्क पड़ा। मतलब मेरे केस में पर्टिकुलरली ऐसा हुआ कि जैसे वहाँ पे जो भी ONGC के पैनलिस्ट आते हैं वो जनरली बूढ़े लोग होते हैं, तो हिंदी वगैरह का उनको रहता है थोड़ा। तो मेरे को धनबाद के लोकल ऐसे लोगों के बारे में नहीं पता था कि जो कवि वगैरह हैं, इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो किसी ने एक रैंडम सा नाम लिया कि आप मुकेश शर्मा को जानते हैं, मान ले, ऐसा किसी ने कहा। तो मेरे को नहीं पता था कि मैं जानता हूँ कि नहीं, तो मैं ऑब्वियसली नहीं जानता था उन्हें। अब मेरे को वो 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं घबरा जाता और मैं बोल देता हाँ, फिर वो कह देते अरे ऐसा तो कोई नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने मना किया कि सर मैं इनको नहीं जानता हूँ, और उन्होंने पूछा फिर किसको जानते हो। अब ये भी उस समय अगर मैं पैनिक कर जाता कि हाँ अरे मैं तो किसको जानता हूँ सोचने लगता, उस समय तो खराब हो जाता। तो उस समय रैंडम सा नाम मैंने अपने मन में बनाया, मतलब शायद राकेश शर्मा बना दिया था, कुछ भी बना दिया था। मैंने कहा हाँ सर इनको जानता हूँ। तो कहने लगे किस चीज़ के कवि हैं? मैंने कहा सर इस चीज़ के कवि हैं। कह रहे आप मिले हो इनसे? मैंने कहा हाँ। और कहने लगे आपके कॉलेज में आए? मैंने कहा नहीं सर अभी आया नहीं है, पर बुलाने वाले हैं। तो समझ रहे हो, मतलब डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इनडायरेक्टली का नाम का भी थोड़ा फर्क पड़ा कि हिंदी क्लब और थोड़ा उनका थोड़ा ओरिएंटेशन होता है हिंदी की तरफ, जो भी कह लो। तो उस चीज़ से भी मतलब मेरे केस में ऐसा फर्क पड़ा। मैं अपने केस की बात करूं तो क्लब्स की जगह मैं POR के लिए थोड़ा बोलना चाहूँगा कि मैंने अपनी POR भरी थी। आपका CR हो चाहे इंटर्नशिप रिप्रेजेंटेटिव हो, कॉन्सेप्टो कोऑर्डिनेटर हो, ये सब चीज़ें मैंने डाल रखी थी। उन्होंने पूछा नहीं कुछ कुछ नहीं पूछा उन्होंने पूरा मेरे से। तो मेरे प्रोजेक्ट 90% टाइम मेरे प्रोजेक्ट का पूछा। करीबन मेरा चला था 15 से 17 मिनट चला होगा। मेरे प्रोजेक्ट के पीछे पड़े रहे थे 15-16 मिनट। एक आपका मतलब उसमें एक ही बंदा था 7 लोगों का पैनल में, जिसने मेरे से 90% टाइम क्वेश्चंस पूछे। वो एक के बाद EOR आपका इस सब चीज़ों में घुसता गया। किस्मत अच्छी थी कि उसी वजह से शायद रिजर्वायर मिला, उसका रिजर्वायर का ही बंदा था। तो लेकिन POR का ऐसा रहता है POR से कुछ पूछा नहीं था, पूरा प्रोजेक्ट से ही पूछा मुझे। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ से कि जैसे जैसे मैंने POR लिए, चाहे वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे कंसीटो टाइम काम करना है, फिर कुछ भी, तो इससे मेरे को हेल्प मिली कॉलेज टाइम में। ऐसा नहीं कि मैं ये सोचूं POR लेने से पहले कि ये मेरी स्टडी में दिक्कत देगा, या फिर ये मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर मान लो मैं कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा हूँ उसमें मेरे को ये POR दिक्कत देगा, कभी नहीं देता है। आप आराम से लीजिए। जैसे तुम लोगों ने, अच्छा मैं सबको सबसे पहली बार तारीफ करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग FIPPI में आए हो। तुम लोग शायद तुम लोगों को फर्स्ट टाइम किसी टीम में आए हो, काम करो, तुम लोगों का पहला इवेंट आ गया, वो कराओ। तो ये सब चीज़ मान लो तुम्हें कल को और कोई अपॉर्चुनिटी मिले। आज जैसे तुम लोग 10-15 सब लोग कोशिश करना कि कल को प्रेसिडेंट बनो, अगला 3rd ईयर आने वाला है, कहीं VP बनो, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो इन सब से पीछे मत हटना। ये आपको पर्सनैलिटी आपको कहीं ना कहीं आपको वो उस लेवल पे ले जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, जो मेरा भी कॉन्फिडेंस की थी, विशाल है, तो ये सब कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अगर आप POR नहीं लेते, आप क्लास में पीछे बैठे रहते, ऐसे गप्पे मारते रहते, तो शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो दिन बाहर निकला ONGC के दिन। तो हाँ, तो ये POR हो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो चाहे आपका स्किल सेट हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं कॉलेज में, सब में पार्टिसिपेट करिए। ये नहीं कि 100% इसी में पूरा दिन निकाल ले, लेकिन हाँ 1-2 चीज़ें आप लगातार साइमल्टेनियसली कर सकते हैं पढ़ाई के साथ बहुत आराम से। और मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसका मतलब वो पूछेंगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान नहीं जाता। हमारे पैनल में से 7-8 लोग बैठे थे, उनके हाथ में, सबके हाथ में एक कॉपी थी हमारे CV की, तो उन्होंने पढ़ लिया होगा जैसे हम सबकी चीजें हैं, बस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से पूछ नहीं पाए इन सब चीजों के बारे में। बट उन्होंने देखा कि ONGC बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू, तो टेक्निकल पूछ रहे थे वो, उन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से पूछ नहीं पाएंगे, बट उनका ध्यान चला ही जाता है हर चीज, क्योंकि CV में लिखा है साफ साफ तुमने। Okay, so that was really informative. बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, क्लब्स की इम्पोर्टेंस भी और आज की इम्पोर्टेंस। So everyone wants to prepare in a very good way and in a very strategic way कि placement आने वाला है तो preparation करते हैं, अच्छे से preparation करते हैं। So what was the preparation strategy for the placement process? जब इंटरव्यू होने वाला था तो उस टाइम पे मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। मतलब कि उससे पहले भी मुझे नॉलेज था, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज थी सब चीज़ों की, लेकिन मैंने 3 महीने पहले अच्छे से मतलब स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए। तो मैंने बेसिक्स सबका
क्लियर किया था पहले, मतलब जो भी था, मतलब रिजर्वायर ड्रिलिंग जो भी हो, पाठक सर का जो नोट्स था थोड़ा थोड़ा उनसे देख लिया, क्योंकि मुझे पहले तुमको एक काम करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुमको किस फील्ड में जाना है, या फिर प्रोडक्शन हो, ड्रिलिंग हो, या फिर रिजर्वायर हो। ऐसे नहीं कि तुम किसी भी सब्जेक्ट में सब इन डेप्थ चले जा रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा कि पहले डिसाइड कर लो किस फील्ड में जाना है। फर्स्ट मेरे को प्रोडक्शन में जाना था, तो मैंने पहले डिसाइड ही कर लिया था स्टार्टिंग से कि मुझे प्रोडक्शन ही लेना है। तो फिर उस हिसाब से मैंने पहले रिजर्वायर थोड़ा सा वो सर तारकेश्वर सर का जो भी था PDF वगैरह वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया ऊपर से, बेसिक तो क्लियर ही होना चाहिए, ये तो मैं बोलूँगा। अब बेसिक में ये मत पूछना कि क्या बेसिक में क्या ही आता है, हम भी यही पूछते थे अपने सीनियर से कि सर बेसिक में अब बोलो तो क्या ही आएगा, बेसिक में इतना सारा बेसिक है। तो वो नॉर्मल चीज़ जो पाठक सर और ये रिजर्वायर में जो नोट्स हैं वो अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए, ये नहीं बोलूँगा रट लो, समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है वहाँ पे। और थर्ड मैं ये बोलूँगा कि तुमको, जैसे कि मैंने प्रोडक्शन का स्ट्रेटजी बनाया था, तो मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसकी कुछ बुक्स पढ़ी थी अच्छे से, तो और मैंने प्रोजेक्ट किया था आर्टिफिशियल लिफ्ट पे, तो उस पर मैंने इन डेप्थ बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि हाँ कुछ भी अगर सवाल आएगा उससे, एक ऐसा चीज़ तुम पकड़ लो अगर लिख रहे हो प्रोजेक्ट में, तो उसके बारे में तुमको इन डेप्थ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इन लोगों ने बोला इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, आशीष और अरित्रा लोगों ने, तो इन लोगों को उसके बारे में अच्छे से नॉलेज था, तो मुझे भी, मैंने जो प्रोजेक्ट लिखा था उसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज था। तो मैंने ये नहीं देखा कि मैंने सबके बुक्स नहीं पढ़ने लग गया। मैंने ड्रिलिंग का जो भी था, एक बुक होता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उस बुक का, ड्रिलिंग का जो भी होता है बेसिक, हाँ राबिया, मैंने वो बुक आज तक खोल के नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रिलिंग में मुझे जाना नहीं है, तो मैंने बेसिक थोड़ा सा उठा लिया। रिजर्वायर भी का मैंने तारिक अहमद थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखा था बस, फिर मुझे पता था कि इसमें भी कुछ होने जाना नहीं है, तो मैं, क्योंकि रिजर्वायर में तो मिलना ही था सुयस और अरित्रा को, अजिंक को, तो मैं तो पता था मुझे कि मुझे नहीं मिलने वाला रिजर्वायर, तो फिर मैंने प्रोडक्शन चूज़ किया था। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी और इन डेप्थ तैयारी करी थी, और मैंने 3-4 बुक पढ़ा था अच्छे से। तो ये मैं बोलूँगा एक कोई फील्ड चूज़ करो और उसके बारे में इन डेप्थ चले जाओ। अभी और तुम्हें बताएंगे, अक्षत भी बताएगा ड्रिलिंग के बारे में, उसने भी बहुत बुक पढ़ी है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरा स्ट्रेटजी था स्टार्टिंग से, जो वर्क किया वहाँ पे, वर्क किया। मुझसे प्रोडक्शन के बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो वो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाया वहाँ पे, तो ये मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिला वहाँ पे। ये मेरा स्ट्रेटजी था ओवरऑल। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सिमिलर मेरा भी था, मैंने भी प्रोडक्शन और रिजर्वायर अपना मतलब इक्वली मैं लेके चला। ड्रिलिंग मेरे को इतनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन स्टिल मेरे को मतलब यही था कि प्रोडक्शन रिजर्वायर में कोई भी मिल जाए, मैं हमेशा दोनों बराबर पढ़ता था। लास्ट डे तक भी यही था। तो प्रोजेक्ट मेरा रिजर्वायर में था, ईआर के ऊपर था, तो हाँ लास्ट टाइम में तो ऐसा हो गया, ज़्यादा इंक्लाइंड रिजर्वायर की तरफ हो गया। लेकिन थर्ड ईयर से सेकंड ईयर से बेसिकली मेरे दिमाग में था कि हाँ ड्रिलिंग छोड़ के प्रोडक्शन रिजर्वायर बराबर बना के चलना है। तो फिर ऐसा जो भी टॉपिक्स थे आपका, चाहे जो भी प्रोडक्शन के टॉपिक्स थे रिजर्वायर के, मैं पढ़ता गया। बाकी फोकस भी यही था कि दोनों में से कुछ मिल जाए, इतना ज़्यादा मेरा कुछ था नहीं। इंटरव्यू मेरा ये लास्ट टाइम तक देखो, जब इंटरव्यू 10-15-20 मिनट का था, उससे पहले तक भी, उस पॉइंट तक भी मेरे लिए यही था, चाहे प्रोडक्शन में चाहे रिजर्वायर मिले। हो सकता है मे बी आज मैं प्रोडक्शन लेके बैठा तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे रिजर्वायर लेके बैठा हूँ उसमें भी अच्छी बात है। बस यही पॉइंट था कि वो इंटरव्यू के दिन डिसाइड हो जाएगा कि क्या है। जरूरी नहीं कि अगर आप प्रोडक्शन ही तैयारी करके जा रहे हो तो फिर आपको प्रोडक्शन ही मिल जाए, या फिर बिल्कुल एक्सेप्शनल हो, पूरे बैच में सबसे एक्सेप्शनल हो, तो उसका स्कोप भी बहुत कम है, क्योंकि सेकंड बंदा भी पढ़ रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप ही पढ़ रहे हो। तो फिर इसीलिए तो आप 2 तो कर ही लीजिए, एक इतना छोटा भी नहीं ना पेट्रोल इंजीनियरिंग, कि आप एटलीस्ट 2 तो मेरे हिसाब से आप लेके चलिए, चाहे प्रोडक्शन, ड्रिलिंग रिजर्वायर जो भी हो, तो आप 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार करके जाना। एटलीस्ट 3 पढ़ लो, वो भी अच्छी। और बहुत सारे बच्चे, इवन ये संदीप भी बोला, तो उसको ऐसे कैलकुलेट मत करना कि उसको नहीं आता, उसकी बहुत अच्छी रिजर्वायर भी है, ड्रिलिंग भी है। तो हाँ, तीनों बेसिक चीज तो तीनों की सबसे पहले कवर करिए, उसके बाद हाँ एक में एडवांस्ड अपनी तैयारी रखते हैं, 2 में बाकी लोग। तो यश एक तो सभी बताए कि हाँ मतलब किसी एक सब्जेक्ट को चूज करो, फिर उसको मतलब उसको डीप नॉलेज लो वगैरह वगैरह जो भी है। मेरे ख्याल से एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, एक टी कुमार का रिजर्वायर इंजीनियरिंग कोर्स है, सेकेंड ईयर में हमें पढ़ाया जाता है। वो एक ऐसा कोर्स है ना, मतलब वो पूरे 4 साल को कवर करता है, जिसमें कोनिंग वगैरह सब कुछ है। अगर वो तुम क्लास में ध्यान से पढ़ो तो हैरियट वाटिया वगैरह वगैरह, मतलब सब में उसी का मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा इधर उधर। तो अगर जैसे हमारे कुछ भी इंटर्न वगैरह होता था ना,
जैसे हम कभी इंटर्न के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कभी प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा वो PDF खुलता था, वो 8, 9, 10 जो PDF है वो टी कुमार का सबसे पहले वही खुलता है, और उससे मतलब सारी सब्जेक्ट उससे मतलब रिलेटेड ही है। तो एक बार अगर वो तुम स्क्रॉल कर लो वो अच्छे से, या फिर क्लास में अच्छे से पढ़ लो, तो वो तुम्हारा हो जाता है। मेरा भी वही सीन है। राबिया मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, हैरियट आर्ट एकदम लास्ट में देखा लेकिन वो रिजर्वायर वाला वो था, मतलब वो कॉन्सेप्ट सही था, तो लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे ही गया और थोड़ा बहुत रिजर्वायर बस। तो प्रोजेक्ट वाला चल था तो वो आता था वो मतलब, तो सही चला गया। बाकी रिजर्वायर का तो है ही, 2-3 बुक है सही है। अक्षत। हाँ, तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा एंड मैं ये बोलूँगा कि जैसे ये तो चीज़ें हो गई जिन्होंने पढ़ा हो सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट, तो आपको बेसिक आता हो। एंड मेरा हाल तो मतलब सुयश वत्स को तो पता ही है अच्छे से, संदीप को भी पता है कि मैं नहीं पढ़ता था सेकंड ईयर में। आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फुटबॉल। एंड जब मैं थर्ड ईयर में आया तो ये कोविड का सिनेरियो हो गया था, तो मेरा ये था कि मेरा बेसिक कुछ नहीं था, तो मुझे पता था कि अगर कुछ होना है ना तो मिरेकल चाहिए होगा उसके लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया एंड अक्टूबर में एक्चुअली मैंने तैयारी शुरू की थी। एंड हैरियट वार्ड फॉर ड्रिलिंग एंड हैरियट वार्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड तारिक अहमद फॉर रिजर्वायर, ये मैंने उठाई थी। और मैंने सोच लिया था कि अपना मटेरियल जितना कम रखूँ ना उतना ही अच्छा है। तो ये 3 बुक्स ही पढ़ी थी इन तीनों के लिए। तुम लोग भी ऐसा ही करना कि एक एक बुक ही चुनना तीनों प्रोफाइल्स के लिए, ठीक है? एंड पढ़ के देखना कि किस में इंटरेस्ट आ रहा है और वो तुम्हारा मेन प्रोफाइल होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ONGC में तो प्रेफरेंस भरवाई थी इन्होंने, बट पूछ तीनों चीजों से रहे थे, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, रिजर्वायर। बट तुम बाकी कंपनीज का देखो, केन हो गई या कुछ और हो गया, उसमें वो तुमसे फेवरेट सब्जेक्ट जरूर पूछते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि तुम अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर रखो। तो मेरे केस में मैंने जैसे ड्रिलिंग हैरियट वार्ड से भी पढ़ी थी एंड राबिया से भी पढ़ा था, जस्ट बिकॉज कि मुझे वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट एज बोलना था एंड दैट हेल्प मी। एंड प्रिपरेशन के टर्म्स में यार मैं तो यही बोलूँगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा है सेकेंड ईयर में तो तुम्हें बुक उठानी पड़ेगी, क्योंकि बुक में ही एक बहुत ही वेल कनेक्टेड वे में तुम्हें मिलेगा, जिससे टाइम बहुत बचता है। वरना तुम नोट से पढ़ोगे ना तो काफी स्कैटर्ड सा लगेगा तुम्हें। सो यही है मेरी तरफ से यार। ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रिपेयर करते टाइम कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना रहता है, इसलिए। और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन मतलब स्किम करना पड़ेगा मटेरियल। यानी जैसे बुक आप पढ़ रहे हो तो पूरी बुक लगातार नहीं पढ़ सकते, बुक में भी ये देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सा नहीं पूछा जा सकता। और दूसरी बात, ONGC में एक टेंडेंसी है किसी भी PSU में, तो वो अपनी कंपनी के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, या एक दो तो सभी से पूछ लेते हैं जनरली। तो मैं उनका आंसर नहीं दे पाया था, लेकिन वो भी प्रिपेयर करना बेनिफिटेड रहता है। जैसे कंपनी का असेट कहाँ पे कौन सा है और ये सब। ठीक, आई थिंक वो एसेट के प्रोडक्शन वगैरह इन सब के बारे में पूछ लेते हैं काफी, तो ये पता रहे तो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। नहीं, और जैसे अक्षत ने बताया ना कि 2 टाइप के लोग हो गए, एक जिन्हें आता है पहले से और एक जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिन्होंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया। मतलब मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को आता था पर गलत आता था। गलत आता इन द सेंस कि GPA है पर नॉलेज नहीं है। तो मैंने तो 2-2.5 महीने पहले स्टार्ट किया था और मेरे को मतलब मेरा केस ऐसा है कि चीज़ें उतनी जल्दी समझ नहीं आती, याद ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने तो अपने कुछ 2-3 दोस्त बना रखे थे जिनको चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे वत्स हो गया, विशाल हो गया, संदीप, अक्षत। तो इन लोगों से मैं समझता था और फिर उसको अपनी तैयारी में इंक्लूड करता था। तो जैसे इन लोगों ने कहा कि हाँ 2-2.5 महीने सफिशिएंट हैं, एक पे मत अटके रहो और कंपनी वाइज प्रिपरेशन नहीं करना कभी कि हाँ ONGC इनमें ले जाती है तो इनमें प्रेफर करना है या ये सब्जेक्ट वैसे करना है। मतलब एक कंपनी वाइज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा अगर साथ में रह के पढ़ो, अगर एक दो तुम्हारे दोस्त हों अच्छे, जैसे मेरे को रिसोर्सेज कलेक्ट कहाँ से करना है या कहाँ से क्या चीज़ करना है वो पता था, जैसे विशाल है या बाकी लोग हैं, तो वो ये बता देते थे कि हाँ इस चीज़ का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, तो ये क्या है। जैसे तो आपस में एक होता है ना सिम्बायोसिस वाली चीज़, तो वैसे अगर कर पाओ तो टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी बचती है और ज़्यादा जल्दी एफिशिएंसी से प्रिपरेशन भी होती है। तो मेरे केस में तो ये है। Thank you, sir. That was really insightful. Now we have
कुछ लिंक आया था ओएनजीसी से, मतलब ओएनजीसी थोड़ा अलग है बाकी कंपनी से, एज इन मतलब उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आधार कार्ड वगैरह, फिर उनका एक उनके 2 अलग फॉर्म से वो फिलअप करके उनको भेजना पड़ता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद उससे पहले उन्होंने एक शॉर्टलिस्ट निकाला था, शायद बैकलॉग, एक्टिव बैकलॉग अगर रहेगा तो वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, एंड 6 या 6.5 उनका जीपीए कट ऑफ रहता है वो। उसके बाद तो वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, डायरेक्ट इंटरव्यू, मतलब प्रोसेस तो यही था। पहले फिजिकल होने वाला था बट देन उन्होंने शिफ्ट करके वर्चुअल करा, ये अच्छी बात है। अगर तुम लोगों के टाइम में फिजिकल हुई तो या तो तुम्हें कोलकाता आना पड़ेगा या तो शायद दिल्ली अलाउ करे, बट वर्चुअल हुआ तो चले। और कुछ था क्या? यही था ना? आशीष, प्रोसेस तो बस इंटरव्यू ही था। And what were the challenges you faced during selection process? Next अरे part. मेरे पर्सनली चैलेंज बताओ तो इंसेंट के जस्ट बाद ही था, तो वो बहुत दिक्कत हो गई थी इस बारे में, एंड मुझे इंसेंट के बीच में कोविड हो गया और भी अलग से दिक्कत हो गई थी इसमें। यही था कि कोविड के बीच में पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, ऊपर से इंसेंट बहुत ज़्यादा वक्त ले लेता है एंड द टाइम वेस्ट। आई होप तुम लोगों के टाइम पे ओएनजीसी पहले आ जाए। ओएनजीसी जनरली शायद सितंबर या अक्टूबर में आ जाती है, तो इंसेंट से उनका कुछ मतलब प्रॉब्लम होता नहीं है, बट इस बार कोविड के वजह से सब कुछ डिले हो गया। नहीं फाइनल ईयर में कॉलेज के समय, तो कॉलेज में एक्चुअली बहुत स्ट्रेस फील होता है। जैसे हमने अपने सीनियर्स का देखा था कि सबकी प्लेसमेंट लग रही है, इधर से ये न्यूज़ आ रही है, इसका गूगल, इसका ये, इसका वो। तो वो जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है वो अपन लोगों ने इतनी फेस नहीं करी, क्योंकि अपन सब घर पे थे। किसी की न्यूज़ सुन ली, आपने कहा कि अरे कोई बात नहीं, अपन भी हो जाएंगे, या देखी जाएगी। सीडीसी वाली फील ही नहीं आई, सीडीसी वाली फील नहीं आई। हाँ, वही लॉबी में बैठे हो, इधर से लॉबी में बैठे, रिजल्ट आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। चैलेंज ये था कि कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कोविड का टाइम था, ऑयल प्राइस फॉल हो गए थे, तो बस वही था, मतलब उसकी तो बस थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती थी। तब तक तो शायद सिर्फ 2 ही कंपनी थी, केएन और ओएनजीसी, जब मतलब ओएनजीसी आई थी। चैलेंजेस तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम नहीं थे, बट इंटरव्यू से पहले काफी चैलेंजेस, मतलब जैसे मेरे को आइडिया है कि जब प्लेसमेंट के लिए पढ़ना शुरू कर रहा था मैं, तो जैसे हिमांशु ने कहा कि कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि कंपनी आएगी भी या नहीं आएगी। तो बेसिकली टाइप ऑफ गैम्बल था कि तुम अब क्या करोगे। जैसे मेरे बैच के बहुत सारे लोग कोडिंग, मशीन लर्निंग में जा रहे थे, तो अभी वही बहुत ये तुम पे गैम्बल होता है। फिर सेल्फ बिलीफ कह लो कि तुम्हें मेरा ये मानना था कि 4 साल पेट्रो पढ़ा तो अब ट्राई कर ही लेता हूँ, फाइनल बार होगा तो होगा, नहीं तो पार। अरे वही फिर मैंने गेट 2020 से भी उन्होंने हायर किया नहीं था। हाँ वही गेट 2020 से भी हायर नहीं किया, तो बहुत अनसर्टेनिटी थी। वही एक गैम्बल के कारण मतलब कई लोग प्रोफाइल ही शिफ्ट कर देते हैं। मैंने भी अपनी प्रोफाइल शिफ्ट कर दी थी, मैंने भी कोडिंग वगैरह शुरू कर दी थी, और मैं भी सोच रहा था कि जो ओपन टू ऑल कंपनी होगी उन सब में अप्लाई करूँगा, और मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख रहा था उस टाइम, ओएनजीसी की प्रिपरेशन करने की बजाय। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लास्ट में हेक्टिक हो गई थी, क्योंकि फिर मैंने लास्ट 15 डेज में ही पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब जब कंपनी अनाउंस हुई थी तब। तो ये थोड़ा दिक्कत रही। और जैसे तुम्हारे अजिंक सर ने कहा कि इधर इनकी इंटर्न सुना सुनी में, तो अजिंक सर को तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं थी, उनकी जीपीए थी और ओएनजीसी सबसे पहले आके प्लेसमेंट करके चली गई थी, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी लोग थे जो दूसरे बैचेस के थे, हाँ प्रॉब्लम होती है जब बाकियों की प्लेसमेंट लगती है या फिर तुम्हारी नहीं लग रही, तुम हो केपेबल, तुम्हारी नहीं लग पा रही, वो मेंटल फेज अलग होता है। बट इंटरव्यू से पहले का जो प्रिपरेशन फेज है उसमें सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग क्या माइंडसेट है, किसी की स्किल सेट ज्यादा है। जैसे अजिंक सर को ज्यादा टेंशन थी नहीं, बट हमें थी, हमारा जीपीए नहीं है, किसी को और भी प्रॉब्लम्स थे कि कैसे उन्हें टैकल करना है। तो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स तो सबके हैं, तो इसलिए मटिया हो इन सबको। जीपीए ना होने का एक फायदा भी था, मतलब कुछ टेंशन भी नहीं, मतलब मुझे लगा मेरा होगा नहीं, मैं एकदम चिल होकर इंटरव्यू दिया था। हाँ एग्जैक्टली, मैं जैसे
जैसे तुम लोगों को पता ही, मैंने मेरा सोचा था कि केन में हो सकता है, ओएनजीसी बस ऐसे ट्रायल बेसिस के लिए दे रहे थे कि इंटरव्यू ट्रायल दे रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंटली दे दिया, बस हो गया। इंटरव्यू के टाइम तो मतलब मैं भी रिलैक्स था, क्योंकि मतलब कुछ पता था कि होगा कि नहीं होगा, बस आखिरी के 15 दिन ही मतलब बस पढ़ा है और डन, और मतलब दूसरी प्रोफाइल की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो ये तो था मतलब गैम्बल ही कैसे नहीं, और अनसर्टेनिटी तो अभी भी है, अभी हमें ऑफर लेटर नहीं आया है। अभी बस इम्पैनल्ड हुए हम लोग हो जो हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हो ओएनजीसी के, अपनी का भी आना बाकी है। केन वालों को तो शायद कॉल भी आ गया। Okay, so that was really good. We got to know that there are no such 2 to 3 rounds in the ONGC placements. Talking about ONGC has a specific ONGC training period. So, what was the overall contribution of the ONGC training process in the placements? मुझे तो ट्रेनिंग से कुछ पूछा नहीं था, बट मेरे कुछ बैचमेट्स, मेरे कुछ दोस्तों को पूछा गया था ट्रेनिंग वगैरह से। जैसे ट्रेनिंग से तो बहुत चीज पूछा था भाई। ट्रेनिंग से अक्षत और सैंडी ज्यादा बताएगा। मेरे से भी पूछा था ट्रेनिंग में। मैं और सैंडी साथ ही में थे। ट्रेनिंग से उन्होंने कुछ सवाल पूछा था। तुम अहमदाबाद गए थे क्या? तुम सेकंड ईयर वाले हो, थर्ड ईयर वाले हैं ये लोग? कोई भी नहीं गया। कहाँ जाएंगे? तब भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, लॉकडाउन हो गया। तो फिर क्या हुआ था, ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ सवाल पूछा था कि वहाँ पे अहमदाबाद पे डिसॉल्टर प्लांट पे कितने स्टोरेज का टैंक था। तो अब पता तो था नहीं किसी को, तो फिर देखा था 6 था वहाँ पे, 6 स्टोरेज टैंक था। तो मैंने 6 बोला, फिर उन्होंने बोला स्टोरेज कितना था, कैपेसिटी कितना था। तो मतलब कुछ भी बना के बोल दो यार उस टाइम पे, जैसे विशाल ने उस स्टार्टिंग में बोला था कॉन्फिडेंस, तो उस टाइम पे तुमको पता नहीं है किसी से, तो एक स्पून पे कितना मीटर क्यूब पानी होगा, ये सब भी पूछने लग गए थे वो लोग। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे गए थे जो मैंने सुना था। तो उस टाइम पे स्टोरेज टैंक का मुझसे पूछा था, मैंने बोल दिया था 30,000 मीटर क्यूब था सर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो था नहीं उतना, तो मैंने ये बोल दिया था उनको कि मुझे तो आता है सर, कि आप देख लो फिर आगे। तो ये सब थोड़ा बात था। और ये महसाना से डिसॉल्टर प्लांट का कुछ कहाँ जाता है ऑयल, कुछ आगे जाता था, वो ऑयल कहाँ ट्रांसफर किया जाता है वहाँ से डिसॉल्टर प्लांट के आगे, तो वो सिर्फ सब बात अक्षत से, बड़ौदा रिफाइनरी में। हाँ, वो अक्षत से पूछा तो वो अच्छे से बता पाएगा। किसी से रिफाइनरी का कुछ पूछा था, मुझे इतना पता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, पूछा था किसी को। और ट्रेनिंग चाहे तुम्हारी ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग तुम्हें सारी पूछ, जैसे तुमने महसाना गए तो 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, तो वहां से थोड़ी नहीं। मेरे से जो एक एक्सकर्जन होता है उससे पूछा गया था, मेरे से मेजर सीबीएम के बारे में। मेरे हिसाब से 90% टाइम वो आपसे सीवी बेस्ड पॉइंट ही पूछेंगे, जो आपने अपना ट्रेनिंग का सीवी में लिखा होगा, एग्जैक्टली वो जो लाइन होगी उसी से रिलेटेड या एग्जैक्टली वही चीज पूछेंगे कि आपने क्या करा। भाई हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम लाइन टू लाइन पिक करके मुझे पूछा था। मतलब सीवी के मतलब एकदम लास्ट में एक लाइन था, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, मैं जाने वाला था, मुझे रोक के फिर वो बस एकदम लास्ट लाइन से पूछा था कि ये देख रहा हो ये क्या किया था। तो वैसे ही टाइप का कुछ है। एंड यार ट्रेनिंग में देखो तुम, हमारे जैसे 1 महीने की ट्रेनिंग थी, तो 1 महीना कुछ किए तो थे नहीं हम लोग, ऐसे ही आ गए थे। तो मेन चीज यही है कि रिपोर्ट जो बनानी होती है ना ट्रेनिंग के आखिरी दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो हमने अच्छे से तो नहीं बनाई थी, छापी थी, बट अच्छे से छापा था ये कह लो। तो और वो अच्छे से छापना काम आ गया जब ओएनजीसी आने वाली थी, उसके पहले हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। तो जैसे संदीप ने बताया कि स्पेसिफिकेशंस पूछ रहे थे वो, तो उस रिपोर्ट में मुझे मिल गया, तो मैंने रट लिया था। अब जैसे फ्लो चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जैसे हम लोग जीजीएस गए थे, शायद जीजीएस भी गए थे, तो वहाँ का मतलब जो वो सब है, तेल का फ्लो, ऑयल का फ्लो, गैस फ्लो, क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी पूछ लेते हैं। मेरे से भी जीजीएस का पूछा था, क्योंकि मेंशन करा था एग्जैक्टली सीवी में से कि कौन सा जीजीएस का कैसे फ्लो था। और दूसरी चीज ने पूछा था, जो आपके आईआरएस हेड है, वो पैनल में बैठे थे, उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था। और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेंगे कि तुमने क्या देखा वहाँ, सेपरेटर, टैंक्स, ये सब चीजें। ओके, एंड इनके बारे में डीप में नहीं गए थे वो, बट वो पूछेंगे जरूर कि क्या क्या देखा था, तो वो भी जरूर देख लेना। और इन चीजों की स्पेसिफिकेशंस ये भी पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल दैट्स इंपॉर्टेंट इन द ट्रेनिंग
I would say. Yeah. मतलब आपके इंटर्न और ट्रेनिंग को मतलब इक्वली बैलेंस करके जाना, जैसे इन लोगों ने बोला ना कि ट्रेनिंग का पूछा, तो मेरे में भी ट्रेनिंग लिखी थी पर इंटर्न भी थी, तो वो ट्रेनिंग पे क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट थी ना, तो इसलिए वो इन्होंने इंटर्न का पूछा, मेरे में यूटीपी और ओएल का पूछा, फिर वो उस पर जा नहीं पाए, उन्होंने कुछ हल्का सा एक सवाल पूछा होगा, फिर वो नहीं गए। तो वैसी चीज़ें मतलब दोनों चाहे इंटर्न हो गई चाहे ट्रेनिंग हो गई, इन दोनों को मतलब इक्वली बैलेंस करके पढ़ के जाना अच्छे से, तो अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर लोगे। फिर अगर गलत आंसर भी दोगे तो भी कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे। तो और वो जैसे इन लोगों ने कहा कॉन्फिडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो Yeah. Thank you, sir, for the wonderful answer. We know so many things about the challenges that you all experienced during selection process and other things regarding training. So now let's move on to the next round, the fun part. So clubs again play a very important part in our college life. So given a chance, which club would you open at IIT ISM? Like the idea of it, just the idea. What should it be of? चाय पे चर्चा क्लब। ऐसे जो मटियाऊ लोग होते हैं उनके लिए एक ऐसे क्लब हो, अच्छी सी चाय हो, ऐसे पॉलिटिकल डिबेट्स या फिर जो भी मतलब जो चाय पे चर्चा टाइप की रहती है। सो या मे बी एक्सटेंशन चाय का मतलब मैं आई एम अ वेरी बिग एसआरकेन फैन, तो मेरा जो क्लब होता वो एसआरकेन क्लब होता। और मतलब फैन क्लब खोल देते तुम? हाँ, तो अपन अगर कुछ जैसे अनलिमिटेड बजट वगैरह होता तो शाहरुख खान को बुलाते, तो डायलॉग्स वगैरह वैसे। पैरानॉर्मल क्लब एक खोल सकते थे। गेमिंग क्लब भी नहीं है आईएसएम में, तो ऑनलाइन गेमिंग क्लब। लॉकडाउन में तो खेला ही होगा सब लोगों ने काफी कुछ ना कुछ। नहीं खेला मतलब। So थोड़ा आइडिया लगा, लाइक कोई चाय पे चर्चा टाइप का क्लब खोलना चाहता है and someone wants to open a gaming club. So yeah, that was nice. Moving on to the next question, we all know that we come into the college as a different person, and when we pass out, we graduate, we are completely changed. Obviously, our personalities are changed. So how have these 4 years impacted your college life? Obviously, the final year is a bit sore because of the COVID situation, but how has these 4 years overall impacted your personal as well as professional life? कॉलेज बेसिकली तुम्हारे लिए रियलिटी चेक टाइप होता है, तुम ये कह सकते हो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब जेई क्लियर करके आए थे तो मैं खुद को तो बहुत टॉप टाइप समझता था। मेजर केस में सबका यही सीन होगा, सब अपने आप को कि जेई क्लियर करके आए वगैरह, बट तुम जब यहाँ पे आओगे तो सारे जेई क्लियर करके आए, फिर उसके बाद तुम लाइटली ले लोगे। तो बेसिकली कॉलेज रियलिटी चेक टाइप होगा तुम्हारा, जैसे मिरर, जैसे तुम्हें लोस बहुत दिखाएगा पर तुम्हें बाउंस बैक करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छी खासी मेमोरीज देंगे, दोस्तों से मिलवाएगा, तुम यादें मतलब मेमोरीज बहुत सारी तुम पे बन जाएंगी। इन शॉर्ट रियलिटी चेक, एक वन वर्ड में कहूँ तो मैं कॉलेज रियलिटी चेक कह सकता हूँ। पर्सनली जैसे विशाल ने कहा रियलिटी चेक है, फिर वही अचानक से पहले कॉलेज में जाके कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिर इन द नेक्स्ट 3 और 4 इयर्स वही कॉन्फिडेंस बढ़ते जाते हैं एंड जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ के प्लेसमेंट के पहले ऐसा होता है कि तुम सच में कॉन्फिडेंट बन जाते हो फिर से, पहले की तरह नहीं, बट यू गेन अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच रियली हेल्प्स यू फेस रियली टफ चैलेंजेस। जैसे कि कोई इंटरव्यू में जैसे हमारे सामने 8-9 लोग बैठे थे पैनल में, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस बन जाता है, कॉलेज ऑटोमेटिकली वो हो जाता है कि तुम सबको फेस करके आंसर दे पाओ। गलत दो सही दो वो अलग बात है, बट I think that rebuilding of confidence has played a really major part in my life, क्योंकि पहले जाके अचानक से confidence and morale बिल्कुल डाउन हो गया था। सबको पता है जैस्पर हॉस्टल कितना घटिया है, तो मतलब जैस्पर हॉस्टल फिर अपनी बेकार एडमिन ये सब अचानक से रियलिटी चेक की तरह तुमको ऐसे फेंक देता है, फिर यू नीड टू रीबिल्ड योरसेल्फ। वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा इन माय ओपिनियन। मेरे केस में ऐसा था कि मतलब ये समझ आ गया 4 साल में कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और एंड में अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके ये बंदे ही काम आते हैं। तो बस मतलब बाकी मतलब जो लोग आपको जैसे प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलता है कि हाँ आप ऐसे थे या आप ऐसे हो सकते हो, या ये सिचुएशन थी तो आप ऐसे कर सकते थे या कर पाते अगर कुछ वैसा होता। तो वैसी वाली सिचुएशंस बहुत क्रिएट होती हैं और आपको असलियत में पता चलता है कि हाँ कौन है आपके साथ और फिर कौन नहीं।
वाली चीज। जिंदगी में यार एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अलग, बिकॉज द थिंग इज कि जब तुम इंजीनियरिंग एग्जाम के एक हफ्ते पहले भी ऐसे चिल बैठे होते ना कि मत जाओ यार एक हफ्ता है, वो एक एटीट्यूड आ जाता है मुझसे। क्योंकि यार उससे पहले मेरे केस में ऐसा था कि मैं स्कूल में रहा था, स्कूल में तो यार मम्मी पापा के अंडर रहते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। एंड देन जेई 2 साल तो मैं प्रेप किया था, तो मतलब इस तरह से मैंने कभी रिस्क नहीं लिया कि एक हफ्ते पहले चिल बैठा हूँ। फिर कई बार तो मैं एक दिन पहले ही सब्जेक्ट उठाता था एंड उसके बाद भी मैं पास हो गया था। तो ये एक रिस्क लेने का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि तुम्हें हो जाता है कॉन्फिडेंस कि जब तुम इतना ज्यादा कोर्स एक दिन पहले खत्म कर ले रहे हो एंड पास हो जा रहे हो, तो तुम यार जिंदगी में चैलेंजेस फेस कर सकते हो। सो दिस कॉन्फिडेंस आई वुड से। तो हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है होगा यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं कि जो एकदम ही थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, जो खुद से पढ़ के सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अभी कुछ लोगों को ऐसे होंगे यहाँ पे तुम्हारे क्लास में जिनको अभी लग रहा होगा कि हाँ मुझे तो ये आता है, मुझे सारी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी। मैं अगर कुछ चीज़ की बात करूँ, ड्रिलिंग की ही बात कर लूँ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें लगती है, यहाँ पर ये चीज़ें लगती है, प्रोडक्शन की भी, तो अगर तुम अभी थोड़ा कहीं चीज़ें गलत जा रहे होगे, बहुत जगह गलत होगे तुम। अगर तुम वो चीज़ किसी से बात नहीं करोगे, तुम स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप थोड़ा सा बना लो, थोड़ा उस पर बात करो कि हाँ भाई तुम तेरे को समझा दे या फिर कुछ कर ले ऐसे। तो मेरे से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, विशाल ग्रुप्स बन गए होंगे ना ऑनलाइन सेमेस्टर में, तो उसको आगे भी बढ़ाना। हाँ आगे भी बढ़ाना है भाई उसको। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको कि लोग हम लोग पढ़ते रहते थे तो फिर कुछ क्वेश्चन आता था, पूछता था एक दूसरा, कोई पूछता था तो उसका आंसर पता चलता था, फिर लगता था कि हाँ यहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने में खुद चले जा रहे हो, थोड़ा बना के चलो सबसे, अब थोड़ा बात करके चलो। तो आई थिंक मिडवे बेहतर रहेगा मेरे मिडवे मेरे भी फर्स्ट, मेरे भी फर्स्ट। मैं तो फर्स्ट नहीं जाऊंगा। फर्स्ट था भाई, मेरा भी फर्स्ट था। मैं तो ओएनजीसी में फर्स्ट पे गया ही था। अरे भाई तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछा था वो सुन के मेरी फट गई थी, मुझे लगा ये तो होने नहीं तभी इसीलिए इसी रीजन की वजह से फर्स्ट जाना था कि दिन भर की टेंशन में ना रहो भाई। जिनका 4:30 बजे इंटरव्यू नहीं ऑन टेंशन में नहीं था क्या? ऐसा नहीं है, आशीष ने और जलज ने मुझे बहुत हेल्प किया था, उन्होंने मतलब डिटेल में बताया था क्या क्या पूछा था और उन्होंने लगाया। उसके बाद मैंने पढ़ा और मेरा पहला क्वेश्चन वही ऐसे क्वेश्चन रिपीट मेरे लिए तो मिडवे तो अभी इसी टॉक में किसी ने बोला कि एक फायदा, मतलब मैं इंटरव्यू में गया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं वही सोच के गया कि जो सीनियर्स ने बताया कि हाँ, मतलब मैं तो ये मतलब ये माइंडसेट से था कि हाँ मेरा तो जीपी है, वो लोग पूछेंगे कि हाँ ये ऐसा। मैं गया, वो पूछ रहे डॉलर की प्राइस क्या चल रही है। तो मैंने बोला सर मैं देखी नहीं है। कह रहे कब से नहीं देखी? मैंने कहा सर अभी टाइम हो गया सर, प्लेसमेंट की तैयारी करता देख नहीं पाया। तो कह रहे जो लास्ट देखी वो बता दो। तो मैं सोचा कोविड है तो कम हो गई होगी, तो मैंने 30-35 बोल दी, पर उस समय चल रही थी 50। तो मतलब हाँ फर्क पड़ता है थोड़ा, पर हाँ मेरा इंटरव्यू 9 साढ़े 9 बजे हो गया था, बाकी लोगों का शायद 3 साढ़े 3 4 बजे तक चला था। तो 4 बजे तक चला था, तो मतलब दोनों के फायदे नुकसान तो है ही। मैं होता तो फर्स्ट जाता ही। जैसे जाओ चिल होके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना फर्स्ट लाख कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द, जैसे तुम्हारे अजिंक सर कहते हैं कि इंटरव्यू या फिर प्लेसमेंट इंटर्न लगना जस्ट लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ तो सर ऐसे थोड़ा आइडिया लगा, लाइक it is a personal choice obviously if someone wants to go first or last. So coming to the next question, obviously all of you would have planned to spend your final year in a particular way कि ऐसा होगा final year में कुछ ऐसा करेंगे, but due to COVID obviously unfortunately nothing of that sort was possible. So anything that you want to convey to us, like कि final year में आप ऐसा करना चाहते थे और COVID की वजह से क्या क्या मिस हो गया, समथिंग एनी पर्सनल मेमोरीज और समथिंग जस्ट लाइक दैट? सभी मिस हो गया भाई, कुछ ही नहीं हुआ। सबका सब तो घर ही पे बैठे थे। ये तो नमक डालने का सिचुएशन है। हाँ ये तो मतलब परेशान लोगों के ऊपर पूछ रहा है कि कितना परेशान हो। मेरे को घर से दूर जाना पड़ रहा है भाई, 90 किलोमीटर गांजा फूकने के लिए। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम क्या ऐसे बोल रहे हो कि क्या मिस हो गया? या प्लेसमेंट के बाद घूमने के लिए गोवा जाना पड़ रहा है, इतना बजट एक्सपेंड करके।
तो मतलब यही था यार, कॉलेज रहते सारे लोग साथ रहते। फिर अब तुम लोग जैसे कॉलेज कल्चर थर्ड ईयर जानते होंगे कि कैसे फेयरवेल पार्टी होती है, कैसे आपका प्लेसमेंट पार्टी होती है, अपने तो कैसे सीनियर जूनियर GPL भी नहीं रिलेशनशिप हुआ। चेंज होता है, ये सब चीजें पता होंगी ना थर्ड ईयर को। तो रिलेशनशिप लोगों ने भी मिस करा, हम लोगों ने भी मिस करा। हम लोग प्रोफेसर्स को पार्टी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। मतलब और मेरे केस में तो ऐसा था कि यार मतलब मैं तो दारू पीना चाहता था, मतलब मैं बहुत सालों से स्किप करता जा रहा। जैसे मलेशिया चाइना वगैरह गए तो वहाँ पे सब लोग पी रहे हैं आसपास, मैंने कहा नहीं प्लेसमेंट होगा तब, प्लेसमेंट होगा तब, वो नहीं हो पाया। और जैसे आशीष ने कहा कि जैसे हम लोग देखते थे ना कि सीनियर्स जा रहे हैं तो आंखें नम है, सबकी माला पिलाना है, तो जब मैंने भी सोचा था कि जब अपन जा रहे होंगे तो वैसा कुछ सीन होगा। वो माला पहनाने का वो जो सेरेमनी है वो तो हाँ बहुत वो रिवाज वगैरह ये सब, और मतलब क्लब में लास्ट बार परफॉर्मेंस, मतलब जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मतलब चैनिका अभी भी बहुत, मतलब मेरे तो जो भी 4 साल निकले उसमें चैनिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक होता है ना लास्ट ट्रिब्यूट या वैसी चीज वन होती लास्ट है टाइम तो मैं करना चाह रहा था, या मतलब क्लब के लिए वाली चीज, वो सब थोड़ा मिस हो गया। सभी मिस हो गया यार कॉलेज। तुम लोग कॉलेज की बातें GPL मिस हो करोगे, गया सब भाई, मिस और हो क्या गया। ही बोलूंगा। काफी खराब रहा मतलब एक्सपीरियंस। ये चीज थी कि हम लोग किस्मत खराब है, बस सिंपल सी बात है। We are almost wrapping up the session. So the next question is, what are the suggestions that you would give to your junior? You have committed, want to guide them right. The common mistakes that you would want us to avoid. भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अंडर कॉन्फिडेंट होकर मत जाना कि मेरी जीपीए कम है, या फिर मैं कल रात प्रोजेक्ट नहीं अच्छे से पढ़ पाया, या फिर मेरी ट्रेनिंग नहीं करी हुई है, या फिर मेरे से पहले जो 4 बच्चे गए थे उन लोगों ने 4 ट्रेनिंग करी है। कोई मलेशिया गया है, कोई यूरोप गया है, कोई कहाँ गया है। नहीं, कुछ लोग आपके पास 2-3 चीजें तो सबके पास हो जाएंगी, देखना लास्ट तक। अब बस ये जो तुम्हारा पीरियड है सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, बस कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ कि मेरा 10 मिनट, देखो 10-12 मिनट में आपके पास इतना कंटेंट है आपकी सीवी में, चाहे बेयर मिनिमम भी करो कि वो आपसे एक अच्छा आपको पहचान ले, वो काफी एक्सपीरियंस बंदे। सो यस, अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना, सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा। और बाकी जो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मेरे मतलब बैचमेट्स में बहुत तो कोई कंप्लेन थी कि पूरा इंटरव्यू उनका सीवी के बेसिस पे हुआ था। मेरे लिए मतलब ये बहुत प्लस पॉइंट था। तुमने जो सीवी में लिखा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें हेल्प ही कर रहे हैं उससे पूछ के। बाहर पूछना शुरू कर देना तो वो तुमसे सीवी तुमसे बड़ी हेल्प ही कर रहे हो, तो अपनी सीवी में तुम लिख रहे हो उसे बिल्कुल घोट, मतलब सीवी में झूठ तो लिखना ही मत, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नहीं। और लिख रहे हो तो उसे बिल्कुल उसे सच मान लेना। हाँ, जो भी झूठ लिखा है वो अब से तुम्हारा वो सच है। अपने कुछ बैचमेंट से झूठ लिखा था, बट वो भी रट लिया था, रट के पार कर दिया था लोगों ने। झूठ ओएनजीसी में नहीं है बट है बाहर। और जैसे अभी सैंडी सर ने कहा था, तुमने मिस किया है नहीं किया पता नहीं, कि जैसे उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा था कि उनका रिजर्वर नहीं हो पाएगा। तो ये जो खुद पे एक अपना एक लेवल सेट कर लेना कि मतलब पता ऐसे नहीं कि ईगो में कि ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा मेरा, बट अपना पता रहना कि ऐसा नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा तुम्हें। ऑब्वियसली ओएनजीसी जीपीए को क्रेडिट देती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीपीए देती है। बट जैसे मैंने रिजर्वर नहीं चूज किया, क्यों खामगा कॉम्पिटिशन में बढ़ाना। मेरे को प्रोडक्शन में अपना कंफर्ट लेवल था तो मैं प्रोडक्शन में रहा। तुम्हें अपना कंफर्ट लेवल, अपना जोन पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखा देखी में या फिर हवाबाजी में तुम ऐसे कोई दूसरा चूज कर ले रहे हो कि वही एग्जैक्टली। ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने आप को लो मार्क कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अपना कंफर्ट लेवल जो है वो नो रखना। लोगों से सीखने की कोशिश करो। मैंने सेकंड ईयर में सीखा तो काफी अच्छा गया। थर्ड ईयर में मेरे थोड़ा ईगो आ गया कि हाँ भाई मतलब मैं तो वो, तो उस कारण से डाउनफॉल हुआ। तो जैसे अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे आशीष और मतलब जीपी ना होने के बाद भी इतना प्यारा इंटरव्यू दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये लोग इंटरव्यू ले गए, मतलब बहुत बहुत प्यारा दिया। विशाल कुछ चीजें समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं, वत्सा बहुत अच्छे से क्लास में कंसंट्रेट करता है, या संदीप क्लास में बहुत अच्छे से सुनता है। मतलब इन लोग की एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग है। तो हर मतलब किसी ना किसी से सीखने की कोशिश करो कि यार मतलब मैं ऐसे करता था अपने सेकंड ईयर में कि यार अगर उसमें ये चीज़ है तो मेरे में क्यों नहीं है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसके बराबर आ पाऊँ, या एटलीस्ट मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ वाली चीज़ें। और बाकी तो मटियाओ, तुम लोग तो सीख ही जाओगे बाद में अभी कॉलेज में। तो पता चला like dedication is important, confidence is important, and obviously all these things play a major role.
So with that, we come to the end of our session, the end of the first episode of Placement Talk. It was a great pleasure to interact with you all, and we learned a lot of things. Thanks to everyone who is watching, and yeah, that's all. Thank you. Thank you for inviting us, and all the best future के लिए सबको. काफी मजा आया. थर्ड ईयर में जाने देते ना. सेकंड ईयर कोई निकलेगा नहीं, जिन तीन लोगों शुरू में करी थी. क्या क्या समझ में आया ये पता चला क्या नेम प्लेस बताओ इंट्रोडक्शन में ऐसे क्या हॉबी भी बता दो.